شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا 10واں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحاباؤں کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ صحاباؤں کی تعداد تھی۔ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کو اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، جب تک تم میری سنتوں پر عمل کرتے رہو گے، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہو گے، تب تک تم فلاح پاؤ گے، تم پھلتے پھولتے رہو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس خطبے میں کی، اس باتوں کا چند نچوڑ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت کے لیے، اسے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا اس میں یہ باتیں کہی کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان 2 باتوں کو اگر تم پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کرنا، لوگوں جو چیزیں تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرنا، مسلمان آپس میں کیسے رہے، مسلمان سماجی طور پہ کیسے رہے، ان تمام باتوں کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مساوات، سمانتا کے بارے میں جو آپ نے تاریخی بات کہی اس خطبے کے اندر، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ کسی بھی پرکار کی بھید بھاؤ، اونچ نیچ، جاتی ویوستھا، ان تمام چیزوں کو آج ہم نے ختم کر دیا اور تمام انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ایشور کا بندہ ہے اور ایک ہی ماں باپ کا سنتان ہے، یعنی حضرت آدم اور حوا کا، اور ان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اس رشتے سے کو دھیان میں رکھتے ہوئے تم کسی بھی پرکار کا اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ یہ معیار بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا اس کا معیار کیا ہوگا۔ یہ خاندانی بڑائی، یہ نسب کی بنیاد پہ بڑائی، یہ خاندان و قبیلے کی بنیاد پہ بڑائی، کالے گورے کی، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا اور ان تمام لوگوں سے شہادت لی اور فرمایا کہ کیا میں نے تم تک وہ باتیں نہ پہنچا دی جو اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ باتیں ہم تک پہنچا دی جو اللہ نے آپ کو پہنچائی۔ یہ شہادت 3 بار لیتے ہیں۔ آپ آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا اس بات پر۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو قرآن کی آیت آتی ہے سورہ مائدہ کی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ساختہ رونے لگے۔ آپ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دن رہنے والے نہیں۔ حجۃ الوداع کو لوٹنے کے بعد محض 3 ماہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے ایک غلام کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع جاؤں، قبرستان جاؤں، ان لوگوں کے لیے دعا کروں۔ اور آپ دونوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا غلام، دونوں جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ لے کر کے جب گئے تو آپ نے فرمایا، اے قبر والو، سلامتی ہو تم پر، تمہیں مبارک ہو اور وہ جگہ جہاں تم پہنچ چکے ہو۔ جیسے اندھیری رات کے حصے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا اور بعد میں آنے والا ہر فتنہ اپنے سے پہلے والوں فتنوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے خزانے کی کنجیاں دی اور جب تک میں یہاں رہوں ہمیشہ کے لیے اور یہیں سے جنت چلا جاؤں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم یہاں سے میرے پاس آ جاؤ جنت کی کنجیوں میں کو لے کر کے۔ اس غلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کی دولت
दुनिया की जिंदगी और यहीं से जन्नत का फैसला कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो फैसला कर लिया कि अपने रब से जा मिलूं। फिर आप कब्रिस्तान से वापस आ गए। ये हिजरत का 11वां साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तबीयत के खराब होने के बाद धीरे धीरे ये महसूस कर रहे हैं तमाम सहाबा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे नहीं हो रहे हैं। और जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को बुलाया और कहा कि क्या मैं किसी एक बीवी के पास न रह जाऊं, क्योंकि अब मेरे पास चलने फिरने की सलाहियत नहीं है। तमाम बीवियों ने कहा मशवरा करके कि आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास रह जाइए। बुखार की अलामत आपके जिस्म से इतनी ज्यादा थी, आपके अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी, बावजूद इसके कि आप वजू बनाते और नमाज के लिए जाते। जब आपकी धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती गई और आपकी सेहत बिगड़ती गई, आप एक रोज नमाज के लिए खड़े हो रहे थे, वजू बना रहे थे और गश खा करके बेहोश हो जा रहे थे। जब आप बेहोशी के आलम से उठते तो पूछते क्या नमाज हो गई, तो लोगों सहाबा कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतजार है। फिर आप वजू करते, फिर नमाज के लिए उठने की कोशिश करते और गश खाकर गिर जाते। फिर आप फरमाते कि क्या नमाज हो गई, फिर साहबा कहते कि आपका इंतजार है। जब आपको होश आया तो आपने कहा कि हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाएं, और हजरत आयशा ने कहा कि अबू बकर की आवाज बहुत धीमी है और जब कुरान की तिलावत करते हैं तो बहुत रोते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर जब बेहोशी से उठते हैं तो पूछे कि नमाज हो गई, फिर अबू बकर के बारे में कहा था कि नमाज पढ़ा। ये मामला जब 3 बार आता है तो चौथी बार आप आवाज तकलीफ की वजह से जोर से निकलती है और आप कहते हैं कि अबू बकर नमाज पढ़ाओ, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाते हैं। यह मामला उसके बाद नमाज पढ़ाने के कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी तबीयत संभलती है और आप जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे हटते अबू बकर, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहा, हाथ से इशारा किया कि आप नमाज पढ़ाइए, और आपने उनके बगल में नमाज पढ़ी। तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है। ये नबूवत का तकरीबन 13वां साल होता है कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है। आपकी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब आपके पास आती थी तो आप उठ करके उनका बोसा लेते थे, उन्हें अपने पास बैठाते थे, उन पर शफ़क़त और मोहब्बत के हाथ फेरते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़्यादा बीमार हुए और हज़रत फातिमा आई तो उस रोज़ भी आप उठने की कोशिश की है, लेकिन आप उठ नहीं पाए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके मुबारक सर का बोसा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठ गई। उनकी इस तकलीफ को देख करके आप रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी रो नहीं, क्योंकि इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक जिंदगी के आखिरी मरहले से जब गुजर रहे थे तो आपने फरमाया सहाबाओं से कि मुझे पता चला है कि तुम मेरी मौत की खबर से दुखी हो, परेशान हो। मुझसे पहले जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, उन सबों को मौत आई है। इसलिए ये बातें ऐसा नहीं कि परेशान करने वाले, बल्कि उसके बाद जो हिदायत जारी किया उसे समझने की जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद उन सहाबाओं को खिताब करते हुए कुछ बातें फरमाई और फरमाया कि सुन लो, जिन लोगों ने पहले हिजरत की इनके साथ हमेशा नेक सलूक करना। महाजिर भी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेंगे और अंसार के साथ भी अच्छा सलूक करना। ईमान वाले बढ़ते चले जाएंगे लेकिन अंसार घटते चले जाएंगे, जैसे आटे में नमक की तरह, यानी इनका घटाव होता चला जाएगा। आप कोई अंसार नहीं बनेगा, अंसार खत्म होते चले जाएंगे लेकिन ईमान वाले बढ़ते चले जाएंगे। मेरे बाद जो मुसलमान खलीफा हो इससे वसीयत करता हूं कि इनके साथ नेक सलूक करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज हलाल की है जो खुदा ने हलाल की है, वही चीज हराम की है जो खुदा ने हराम की है। मुसलमानों किसी को मैंने मारा हो तो मुझे मार लो, मैं यहां हाजिर हूं। मेरे पास किसी का कोई बकाया है तो वो मुझसे हासिल कर लो। उसके बाद एक सहाबी उठा और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आप पर 3 दरहम बकाया है, आपने मुझसे लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनके 3 दरहम को वापस कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को खिताब किया और अपनी फूफी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को खिताब करते हुए फरमाया कि तुम दोनों मेरे पास से जो चाहो ले लो, जन्नत की तैयारी करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि वो जो बचे हुए दिरहम हैं वो कहाँ हैं? तो आपने कहा कि घर में मौजूद है। कहा लाओ,
کہ अल्लाह क्या मुझे जवाब देना होगा कि मैं मौत के बाद इसको छोड़ करके आ रहा हूं। उसको उन्होंने लिया और अपने हाथों से गरीब मुसलमानों को वो जो भी अशरफियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बची हुई थी उन्हें तकसीम कर दिया। गोया जब आप इस दुनिया से जा रहे थे अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलने के लिए तो कोई भी चीज आपने घर वालों के लिए नहीं छोड़ी थी, आपने तमाम कमाई हुई चीजों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। उन्होंने ये भी फरमाया कि हरगिज हरगिज अरब में इस सरजमीन पर कभी 2 दिन नहीं आ पाए, इस बात का ख्याल करना। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपने थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक रहती है तो पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं तो देखते हैं कि लोग सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो ख्वाब को आपने देखा था, जो मिशन को लेकर के आप आए थे कि एक ऐसा गिरोह वजूद में आ जाए जो मेरे बाद भी मेरे हुक्मों पर चले, अल्लाह के दीन को मजबूती से कायम किए रहे, वो टीम मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। उसके बाद नमाज के लिए आप जाते हैं। उनकी आहट सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हटने की कोशिश करते हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बगल में नमाज पढ़ते हैं। फिर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह जान कनी की तकलीफ से झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की ये बेचैनी देखकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह बेचैन हो गई, बेअख्तियार चीख पड़ी और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद तुम्हारे बाप को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और ये मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपकी पाक रूह जा मिलती है। इसके बाद जो हालात सहाबा इकराम के होती है, जो तकलीफ, जो परेशानी और जो कोहराम मचता है, जो रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं, लोग बेचैन हो जाते हैं। तमाम वो जानिसार सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए तैयार थे, इस खबर को सुनकर बेचैन हो जाते हैं और अजीब सी कैफियत उनके अंदर तारी होती है। इस मामले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हजरत उमर का तो यह हाल था कि आप नंगी तलवार लेकर के निकल गए कि अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ये हालत थी उन सहाबाओं की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में और आप देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर उन पर लेटाया गया है, रखा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर को हटा के चेहरे मुबारक देखते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि अगर आपने खुद ये चीज़ न चुनी होती, यानी खुद आपने अगर मौत न चुनी होती, अल्लाह से जान मिलने के फैसला न लिया होता तो हम अपनी जान आपसे पहले आगे कर देते। उसके बाद आप निकलते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु को खिताब करते हैं और आप जो उस वक्त तारीखी खुतबा देते, उन हालात को कैसे संभाला जाए उस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का तारीखी खुतबा होता है। अगर कोई मोहम्मद की बंदगी करता था तो मोहम्मद तो इस जहां से तशरीफ ले गए और अगर कोई अल्लाह की बंदगी करता है तो वह अल्लाह हमेशा जिंदा है, इसके लिए कभी मौत नहीं है। आपने उसके बाद फरमाया कि और मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल हैं, इससे पहले बहुत से नबी गुजर चुके हैं, क्या अगर वह मर जाएं या खुदा की राह में मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव इस्लाम से फिर जाओगे और जो कोई फिर जाएगा वह खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और अल्लाह इस नेमत की कद्र करने वालों को अच्छा बदला देगा। ये जब खुतबा आपने दिया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने तलवार को नियान में डाल लेते हैं और बहुत शांत हो जाते हैं और फिर फरमाते हैं बाज़ में कि ऐसा लगता है कि वो आयत अभी ही उतरी, हालांकि ये बात बहुत पहले उतर चुकी थी, लेकिन उस मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो ये तिलावत आपने की वो ज़बरदस्त थी। उसके बाद ये खबर मिलती है कि कुछ अंसार और मुहाजिरीन आपस में गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं और वो खलीफा चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद कौन, एक बहस हो रही है। ये बात जैसे ही मिलती है हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु तीनों जो है दौड़ते हैं और वहां जाकर के बातचीत होती है और यह तय किया जाता है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बना दिया जाए। खलीफा के तकर्रुर के बाद कि कभी भी किसी नबी की जब रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिलती है, अपने पाक परवरदिगार के यहाँ जाती है तो उसको कहीं अलग नहीं ले जाया जाता है, बल्कि जिस जगह पर उनको उनकी रूह निकलती है उसी जगह पर उनकी कब्र मुबारक बनाई जाती है। वो जिस प्लेस पर आप थे उस जगह को मार्क किया जाता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिस्म को थोड़ा सा हटा करके फिर उसको खोदा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां तक क़यामत तक के लिए लेटा दिया जाता है। ये मुख्तसर सी जीवनी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह जो गलती, जो कोताहियां इस
پوری سیریز میں ہم سے ہو گئی ہو اسے معاف کرنا، وہ حق ہم ادا نہ کر پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول کا، پیغمبر اسلام کا حق ادا کرنا، ان کی جیونی بتانا، یہ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوشش ہو اللہ اسے قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔